Hey guys, welcome you all to our favorite YouTube channel, The Happy Time. In today's video, we are going to see the chapter The Happy Prince from the NCERT Class 9th Moment Textbook. And this video is also available in English language and the link is given in the description box. So if you want to watch the English video, you can watch. So now let's start. सो ये जो हमारी स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जो पहले हम स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि ऑथर के बारे में आप सब थोड़ा जानें। तो इसके ऑथर है ऑस्कर फिंगल फ्लैहेरेटी विल्स वाइल्ड। ही वॉज बॉर्न ऑन 16 October 1854 and he died on 30th November in 1900. He was an Irish poet and playwright. After writing in different forms throughout the 1880s, the early 1890s saw him become one of the most popular playwrights in London. पहले वो जो शॉर्ट प्लेज होते थे और पोएम्स लिखते थे और जो 1890s के बाद वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे लंदन में। अभी मैं बुक में जो पैराग्राफ्स है वो रीड करके उन्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। The Happy Prince. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ में हमें बताया है कि जो हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू था जो कि एक बहुत ही ऊंचे कॉलम पे पिलर पे खड़ा किया गया था। और वो जो स्टैचू था वो पूरा गोल्ड की थिन लिव से कवर्ड था और उसकी आँखों में जो ब्लू कलर के ब्राइट सफ़ायर्स थे और उसकी जो स्वर्ड का हिल्ट है यानी हैंडल है उसमें एक रेड कलर का ब्राइट रूबी था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind and he decided to go to Egypt too. All day long he flew and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made some preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the Happy Prince. अभी जो सेकंड पैराग्राफ में हमें बताया है कि जो बर्ड्स होते हैं तो उनमें जो स्वेलोज है वो माइग्रेट कर रही है। तो पहले अभी वो जो इजिप्ट जा रही है जो कि एक वार्म प्लेस है, तो इसका मतलब वो जो पहली वाली प्लेस पे बहुत ज़्यादा विंटर आ रहा है इसलिए वो लोग अभी माइग्रेट कर रहे हैं। तो जो एक स्वेलो है उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो पहले इजिप्ट जा चुके हैं, 6 वीक्स पहले ही जा चुके हैं और अभी वो भी जा रहा है। तो अभी जब वो माइग्रेट कर रहा है तो वो हैप्पी प्रिंस के सिटी से भी होकर जा रहा है और अभी उसे रात को कहीं पे भी रेस्ट लेना है। तो वो सोचता है कि मैं कहाँ रुकूँ, तो उसे दिखता है कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू दिखता है और वो सोचता है कि मैं ना यहीं पे ठहरूँगा और हैप्पी प्रिंस के जो फीट के बीच में वो लैंड करता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. But as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of the statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell on him. And he looked up and he saw, what did he see? The eyes of the Happy Prince were filled with tears and the tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अभी जो ये swallow था उसने सोचा कि अभी वो सोएगा, जो फीट है हैप्पी प्रिंस के उसके नीचे वो सोने वाला था और जब वो सोने जा रहा था तब उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी, एक ड्रॉप गिरा
और उसे लगा कि बारिश आ रही है। तो उसने ऊपर देखा तो जो स्टार थे वो तो एकदम क्लियर दिख रहे थे, जिसका मतलब है कि कोई क्लाउड नहीं थे। फिर वो सोचता है कि यार ये कैसा स्टैचू है, अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकता। फिर वो सोचता है कि है ना, मैं तो कोई और जगह पे चला जाता हूँ, एक अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढ लेता हूँ। लेकिन फिर जब वो उड़ने वाला था तभी एक और ड्रॉप गिरा और उसने ऊपर देखा। तो फिर उसने क्या देखा कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो तो रो रहा है, उसके तो गालों पे सारे टीयर्स बह रहे थे। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू गोल्ड से बना हुआ था, वो जो मून लाइट थी उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद जो स्वैलो था वो तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि ये स्टैचू क्यों रो रहा है। फिर उसने पूछा, हु आर यू? ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। व्हाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। सो जो अपना स्वैलो है उसने पूछा हैप्पी प्रिंस से कि तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं तो हैप्पी प्रिंस हूँ। और फिर स्वैलो कहता है, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर रो क्यों रहे हो तुम? उसके बाद हैप्पी प्रिंस कहता है, When I was alive and had a human heart, answered the statue, I don't know what tears were, for I lived in the palace where sorrow was not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, I cannot choose but weep. सो अभी हैप्पी प्रिंस है वो बताते हैं कि जब मैं अलाइव था, जब मैं ह्यूमन बीइंग था और मैं पैलेस में रहता था, क्योंकि वो तो प्रिंस थे। और वो बताता है कि मेरे जो पैलेस में मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ थी, तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो मैं हमेशा हैप्पी रहता था। और जो मेरे कोर्टियर्स थे यानी दरबारी थे, वो सब मुझे एकदम हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं हैप्पी भी था। लेकिन जब मैं मर गया तो उसके बाद सब ने मेरा स्टैचू बना के यहाँ पे लगाया है पिलर पे, और जहाँ से मैं सब देख सकता हूँ कि मेरे सिटी में कितने लोग गरीब हैं, जो कुछ दुखी लोग हैं, उन सबको मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ रो सकता हूँ। What is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in the little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse, her red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, Swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the ruby out of my sword hill? My feet are fastened on this pedestal and I cannot move. सो जब हैप्पी प्रिंस है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात और बताते हैं कि वहाँ दूर अपने सिटी में एक घर की खिड़की खुली है और वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक ना वुमन है और वो बहुत थकी हुई है, उसका फेस भी एकदम पतला हो गया है, वो बहुत टायर्ड है और उसके जो हाथ है वो एकदम प्रिक्ट हो गया है, यानी उसमें बहुत सारी सुई चुभ गई है। और वो कहता है कि वो एक सीमट्रेस है। सीमट्रेस यानी जो लोग ड्रेस बनाते हैं, तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, तो बोलता है कि वो तो बहुत थकी हुई है और उसका एक बेटा है जो कॉर्नर में रूम में सो रहा है और कहता है कि उसको बहुत फीवर है और उसको है ना ऑरेंजेस खाने हैं, लेकिन उसकी मम्मी तो बहुत पुअर है, इसलिए तो वो उसे ऑरेंज नहीं दे पा रही है, सिर्फ रिवर का वाटर दे सकती है। तो जो प्रिंस है वो स्वैलो से कहते हैं कि स्वैलो तुम क्या एक काम करोगी मेरा, कि जो मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में मेरे जो तलवार में जो रेड कलर का रूबी है ना, वो तुम लो और उसे जाके दे आओ, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता। फिर जो स्वैलो कहता है, I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. I don't like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt.
But the happy prince looked so sad that the swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. सो जो स्वैलो होता है, स्वैलो कहता है कि नहीं, मुझे तो इजिप्ट में जाना है, मेरे सारे दोस्त वहाँ बहुत मज़े कर रहे हैं, जो नाइल रिवर है वहाँ पे सब ऊपर नीचे खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं। वो कहता है वहाँ पे कितने अच्छे लोटस के फ्लावर्स है, मुझे वहाँ जाना है। तो फिर हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे साथ एक रात रुक जाओ और मेरा ये काम कर दो। सोचो वो लड़का कितना प्यासा है और उसकी मम्मी कितनी दुखी है। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ठंड है लेकिन मैं एक रात रुक जाता हूँ। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. He passed by the cathedral tower where white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last, he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better soon. And he sank into a delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is a curious thing, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. सो अभी जो हमारा स्वैलो है वो जैसा प्रिंस ने कहा उसकी जो स्वर्ड थी उसमें से रेड रूबी लेता है और उड़ते हुए चला जाता है। और फिर जाते वक्त जिसने ऑर्डर किया था ना ड्रेस वो मिली होती है और वो कह रही होती है कि है ना जो सीमट्रेस होते हैं ना वो लोग बहुत लेज़ी होते हैं, लेकिन वो फिर भी जाता है और उसके बाद उनके घर में जाता है। तो जो बॉय होता है जो ईल होता है तो वो देखता है कि वो तो बहुत टॉस हो रहा होता है फीवर से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है। तो वो अंदर जाता है और जो रेड रूबी होता है जो वुमेन के थिम्बल के साइड में रख देता है। थिम्बल एक टूल होता है जो सीमट्रेस पहनते हैं ताकि वो निडल उन्हें चुभे नहीं उनके हाथ में। फिर वो जाता है और जो बॉय होता है तो उसके फोरहेड यानी उसके माथे के साइड पे पंखा करते जिससे उसे ठंडा लगे। और फिर जो बॉय होता है उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसे नींद आ जाती है। और उसके बाद जो स्वैलो होता है वो वापस प्रिंस के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने क्या काम किया है। और वो कहता है कि अभी काफ़ी ठंड है लेकिन मुझे थोड़ा गर्म लग रहा है। तो फिर जो प्रिंस उसे बाद में बताता है कि है ना तुमने अच्छा काम किया है इसलिए ना तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम्हें वार्म लग रहा है। This is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat at a long time on the top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. So अभी जो स्वैलो था तो प्रिंस ने उससे कहा कि तुमने अच्छा काम किया है इसलिए ना तुम्हें गर्म लग रहा है। लेकिन बाद में फिर स्वैलो बाद में सो जाता है और अगले दिन स्वैलो उठता है और वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखता है, थोड़ी देर वहाँ पे घूमता है और फिर रात को कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ प्रिंस से। लेकिन हैप्पी प्रिंस उसे एक और रात रोकता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city. I see a young man in the garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he is large and
and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but it is too cold to write anymore. There is no fire in the garret, and hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if I should take another ruby to the young playwright. सो स्वैलो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो स्वैलो से कहता है कि वहाँ दूर एक प्ले राइटर है और वो उसके बहुत ठंड लग रही है और उसे ना एक प्ले लिखना है और जो डायरेक्टर है उसे सबमिट करना है, लेकिन वहाँ पे उसके पास कोई फायर प्लेस नहीं है और इसलिए ना वो लिख नहीं पा रहा और वो बहुत भूखा भी है। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ एक और रात रुक जाओ, हम उसकी हेल्प करेंगे। तो स्वैलो कहता है अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। फिर Else I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left with. They are made of rare sapphires, which were brought 1,000 years ago from India. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy a firewood and finish his play. He said, Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to whip. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. सो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई रेड रूबी नहीं बची है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास सफ़ायर्स है जो 1000 साल पहले इंडिया से लाए थे। तो वो कहता है तुम ना वो ले लो और उसे दे के आओ। तो स्वैलो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, ये वो तो तुम्हारी आँख है। तो वो कहता है नहीं, मैंने जैसा कहा है वैसा करो। तो स्वैलो उसकी बात मान जाता है और जो सफ़ायर था उसे लिया और उसे लेके चला जाता है प्ले राइटर के पास। और उसके जो रूफ होता है प्ले राइटर का, उसमें होल होता है, तो वो होल से अंदर चला जाता है और प्ले राइटर ने अपने हाथ से सिर ढका होता है तो उसे उसके पंख की आवाज़ नहीं आती। और जब प्ले राइटर उठता है तब उसे वो ब्यूटीफुल सफ़ायर मिल जाता है। I'm beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. The next day, the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I'm going to Egypt, cried the swallow. But nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. So अभी जो प्ले राइटर उठता है और वो देखता है सफ़ायर को, तो वो सोचता है कि अभी मैं इसे बेच दूंगा और फिर ना मेरा प्ले जो जल्दी से ख़त्म कर सकता हूँ मैं, और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे स्वैलो जब उठता है तो वो पूरा टाइम सीलर्स को देखता है काम करते हुए, और उसके बाद रात को फिर सोचता है कि अब मैं चला जाऊंगा इजिप्ट को, और वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है उसे गुड बाय कहने के लिए। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm and the green palm trees and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her mastics fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. सो अभी जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि स्वैलो तुम मेरे साथ एक और रात रुक जाओ, क्योंकि नीचे ना एक लड़की रहती है, वो मैच गर्ल है, मतलब मैस्टिक्स को वो बेचती है, और वो कहता है कि ना उसकी सारी मैस्टिक्स ना गटर में गिर गई है, मतलब ड्रेनेज में गिर गई है और सब ना ख़राब हो गया है, लेकिन अब वो कुछ बेच नहीं सकती और पैसा नहीं कमा सकती,
और हैप्पी प्रिंस कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं कमाए ना तो उसका जो फादर है वो उसे बहुत मारेंगे, और वो बहुत रो रही है लड़की। तो वो कहता है कि ना मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उसे जाके दे के आओ। तो फिर जो स्वैलो होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुक जाऊंगा, लेकिन वो कहता है ना कि मैं तुम्हारी दूसरा सफ़ायर नहीं निकालूंगा वरना तुम ब्लाइंड हो जाओगे। फिर जो हैप्पी प्रिंस होता है जैसा मैंने कहा है वैसा करो। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swept past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughingly. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow. And he slept at the prince's feet. So जो swallow था अभी उसने दूसरा सफ़ायर लिया और जो लड़की थी उसके पास जाके दे दिया, और उसके बाद जो गर्ल थी वो भी बहुत खुश हो गई और वो हंसते हंसते अपने घर चली गई। उसके बाद प्रिंस स्वैलो से कहता है कि अभी तुम चले जाओ, तुम्हें इजिप्ट में जाना है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं तो तुम चले जाओ। लेकिन अभी स्वैलो कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और वो प्रिंस के फीट के पास सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. Dear little swallow, said the prince, you tell me a marvelous things, but more marvelous than anything is suffering of the men and women. There is no mystery so great as mystery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. सो अभी जो स्वैलो होता है वो नेक्स्ट डे खड़ा होता है और जो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के ऊपर उसके शोल्डर्स पर खड़ा होकर उसे सब उसके साथ बातें कर रहा होता है, कि उसे सब बताता है कि उसने आज तक क्या क्या देखा है। लेकिन हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि तुम ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर ना तुम मुझे सिटी में क्या हो रहा है वो बताओ। तो फिर स्वैलो कहता है ठीक है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep them warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. जो स्वैलो होता है वो भी उड़ जाता है, और उसके बाद वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घर में बहुत खुश है, लेकिन जो बेगर्स है वो बहुत भूखे हैं और गेट के पास बैठे हैं। और वो देखता है कि दो छोटे लड़के होते हैं और वो एक ब्रिज के नीचे एक दूसरे को अपने आर्म्स में लेके बैठे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं। और वहाँ पे एक वॉचमैन होता है जो उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पे मत रहो, चले जाओ यहाँ से, और फिर वो बारिश में चले जाते हैं। Then he flew back and told the happy prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to the poor. The living always think that the gold can make them happy. Leaf after leaf of the fine gold, the swallow picked it off, till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the streets. We have bread now, they cried. सो जो अभी हैप्पी प्रिंस होता है वो कहता है कि अभी तो मेरे पास ना ही कोई रूबी है ना ही सफ़ायर्स है, लेकिन वो कहता है कि मेरी जो पूरा कवर है ना, मैं पूरा कवर गोल्ड से किया है, मुझे गोल्ड लीव से। तो वो कहता है कि तुम ना एक काम करो, ये गोल्ड लीव्स लो और जो भी गरीब लोग हैं ना उन सबको दे के आओ। तो जो स्वैलो होता है वो गोल्ड लीव लेता है और इन बच्चों को दे देता है, और वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें खाना भी मिल जाता है। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys who wore scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew older,
grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. "Goodbye, dear prince," he murmured. "Will you let me kiss your hand?" सो जो अभी हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है वो भी अभी काफ़ी डल दिखने लग जाता है, क्योंकि उसका काफ़ी सारा जो गोल्ड होता है वो भी चला गया, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और कुछ टाइम बाद स्नो आ जाती है, मतलब विंटर आ जाता है और हर जगह स्नो होती है। और जो बच्चे होते हैं वो तो काफ़ी खुश होते हैं और सब फरी क्लोथ्स पहनते हैं और सब लोग खेल रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा स्वैलो होता है उसे जो कोल्ड में वो नहीं रह सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और वो बहुत उसे ठंड लग रही होती है और वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को गर्म रखने की, लेकिन बाद में वो जानता है कि है ना, नहीं, अब इतने कोल्ड में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता और अब वो मरने वाला है। तो फिर बस उसमें थोड़ी सी ताकत होती है कि वो जो प्रिंस के शोल्डर तक जा सके, और वो प्रिंस से कहता है कि गुड बाय डियर प्रिंस, और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को एक बार किस कर सकता हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस कहता है, "आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वैलो," सेड द प्रिंस. "You have stayed too long here, but you must kiss on my lips, for I love you." It is not to Egypt that I am going," said the swallow. "I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not?" And he kissed the happy prince on the lips and fell down at his feet. So अभी जो हैप्पी प्रिंस होता है तो वो उस हैप्पी प्रिंस के पास चल जाता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस उससे कहते हैं कि तुम तो लिप पे किस करो, क्योंकि मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो स्वैलो। तो फिर स्वैलो कहता है, हाँ, लेकिन मैं अभी इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अभी मरने जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ। और वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और फिर नीचे गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two, and certainly was dreadfully hard frost. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. "Dear me, how shabby the happy prince looks," he said. "How shabby indeed," cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. So अभी जो नेक्स्ट जब स्वैलो की डेथ हो जाती है तभी एक क्रैकलिंग का साउंड सुनाई देता है, और जो हैप्पी प्रिंस का लड़का हार्ट था उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है। और फिर अगले दिन जब मेयर होता है सिटी का, वो वहाँ पे चल रहा होता है तो वो देखता है कि है ना, ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ये कितना ख़राब दिख रहा है। वो कहता है ये तो बहुत शाबी दिख रहा है। और उसके जो टाउन काउंसिलर्स होते हैं वो तो हमेशा उससे एग्री करते थे, तो कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। "The ruby has fallen out of his words, his eyes are gone, and he is golden no longer," said the mayor. "In fact, he is a little better than a beggar." "Little better than a beggar," said the town councillors. "And here is actually a dead bird at his feet," continued the mayor. "We must really issue a proclamation that the birds are not to be allowed to die here." And the town clerk made a note of the suggestion. So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful and he is no longer useful, said the art professor of the university. Then they melted the statue in a furnace. "What a strange thing," said the overseer of the workmen at the foundry. "This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away." So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. So अभी जो मेयर होता है वो कहता है कि ये तो किसी बेगर जैसा लग रहा है, थोड़ा सा बेगर से बेटर है, और उसके काउंसलर्स भी एग्री करते हैं। और उसके बाद वो मेयर कहता है कि इसके तो फीट के पास एक डेड बर्ड पड़ा है
और फिर वो कहते कि है ना हम एक नोटिस बनवाएंगे कि यहाँ पे ना बर्ड्स का मरना अलाउड नहीं है, और उनका जो क्लर्क होता है वो इसको नोट कर लेता है। और उसके बाद जो उनका आर्ट प्रोफेसर होता है वहाँ की यूनिवर्सिटी का, वो कहता है कि अभी ये स्टैचू बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, तो इसे ना निकलवा लेते हैं हम और इसे मेल्ट कराएंगे। और फिर उस स्टैचू को वो निकालते हैं और मेल्ट करने ले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो लेडन हार्ट है ना वो तो मेल्ट नहीं होगा। और फिर जो एक डस्ट का हीप होता है जहाँ पे स्वैलो भी गिरा होता है, तो वहाँ पे उसे फेंक दिया जाता है। और उसके बाद जो गॉड होता है वो कहते हैं, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड द गॉड to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said the god, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. So here the story ends. सो यहाँ पे जो गॉड है वो उनके एंजल से कहते हैं कि ये जो हमारी पूरी सिटी है इसमें से सबसे प्रीशियस 2 चीज़ें मुझे ला के दो। जो उनकी एंजल होती है वो लेडन का हार्ट और जो डेड बर्ड होती है उसे लेके जाती है। और फिर गॉड कहते हैं कि तुमने एकदम सही चूज़ किया है, यही सबसे 2 प्रीशियस चीज़ें हैं। और वो कहता है कि मेरा जो हेवन है, मेरा जो स्वर्ग है, वहाँ पे ये जो बर्ड है ये हमेशा गाएगी और हैप्पी प्रिंस का स्टैचू भी हमेशा रहेगा। और ये जो स्टोरी थी इसका मॉरल ये है कि हमें हमेशा दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। जो रियल हैप्पीनेस है वो दूसरों की खुशी में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में देखा कि जो हैप्पी प्रिंस पहले जब अलाइव था और पैलेस में रहते थे तब तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि बाहर के लोग कितने दुखी है या उनके क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब वो मर गए और उनका स्टैचू बनाया था तब उन्हें जाके पता चला कि लोगों कितना सफ़र कर रहे हैं, कितने पुअर लोग हैं, उनके सिटी में कितनी अगलीनेस है, कितनी बुराई है। और फिर उन्होंने सबकी हेल्प भी की। और जो हैप्पी प्रिंस थे उसके इतने सारे लोगों की हेल्प करने के बाद रियल में वो और ज़्यादा हैप्पी हो गए। और जो स्वैलो था, स्वैलो भी इतना काइंड बर्ड दिखाया है कि उसने खुद की लाइफ की परवाह नहीं की और हैप्पी प्रिंस के साथ रहकर उसने इतने सारे लोगों का हेल्प किया। क्योंकि जो स्वैलो था उसे तो पता था कि अभी यहाँ पे कोल्ड आने वाला है, सारी स्नो होगी यहाँ पे और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और उसके तो सारे दोस्त इजिप्ट में चले गए थे और वो भी जा सकता था, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, प्रिंस अगर इतना अच्छा है और वो खुद की अपने सारी ज्वेलरी लोगों को दे के उन्हें खुश करना चाहते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी लोगों को खुश रखूँगा और मैं भी प्रिंस के साथ रह के ये अच्छा काम करूँगा। और जहाँ पे प्रिंस और स्वैलो दोनों ने मिलकर इतने सारे लोगों की हेल्प की। सो एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। एंड गाइज अगर आपको और किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालो, क्योंकि हम कमेंट्स आपके देख के आपको जो चैप्टर चाहिए उस पर वीडियो बनाएंगे। बट टिल दैट stay tuned with Happy Time and thanks for watching. Please like, share and comment and subscribe to the channel. Thank you.